Hello students, this is Shreya Pandey and I welcome you all to the Law channel. In this video, we are going to discuss the practice MCQs of the Indian Constitution, which will be beneficial for your All India Bar examination as well as any state judiciary examination where the Constitution plays a vital role. So our today's first question is, the authority to alter the boundaries of state in India rests with. हम स्टेट की जब बाउंड्रीज चेंज करते हैं, ऑल्टर करते हैं, ऐड करते हैं या दो स्टेट्स को मर्ज कर देते हैं, ये सारे पावर्स या ये अथॉरिटी किसके पास है? डज इट रेस्ट विद द पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट? डज इट रेस्ट विद द पार्लियामेंट? डज इट रेस्ट विद द प्रेसिडेंट? और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अगर आपने फर्स्ट पार्ट पढ़ा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो you can get the answer in the first part of this constitution, that is section 4 में ये बताया जाता है कि authority to alter the boundaries of the state in India rest with the parliament of our country. That means option B will be the correct answer. The next question is, union government gives grants in aid to the state on recommendation of. Union government grant करती है aid to the state government on the recommendation of. स्टेट्स को ग्रांट करती है एड, तो किसके रिकमेंडेशन पर करती है? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज प्लानिंग कमीशन? इज इट ऑप्शन बी, दैट इज नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल? इज इट ऑप्शन सी, दैट इज द फाइनेंस कमीशन? और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज द नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी? Read the question carefully. Union government is giving the grant in aid to the states on whose recommendation? तो क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फाइनेंस कमीशन. तो यूनियन गवर्नमेंट इज ग्रांटिंग द एड टू द स्टेट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन. आपको सारे कमीशन, कमिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का ध्यान रखना है. दिस विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जाम. Okay, this is important. Which among the following is empowered to constitute interstate council? बात हो रही है यहाँ पे interstate council की. We have options. Option A, Prime Minister. Option B, President. Option C, Supreme Court of India. Or is it option D, that is the Niti Aayog? Which among the following is empowered to constitute? कौन constitute करता है interstate council को? The correct answer to this question will be option number B, that is the President of India is empowered to constitute the interstate council. The next question is, salary of judges during their offices can be reduced. कब हम reduce कर सकते हैं judges की salary? Is it option A, that is article 356 में कर सकते हैं? ऑप्शन बी, आर्टिकल 352 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? ऑप्शन सी, आर्टिकल 360 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? और इज इट ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 357 के अकॉर्डिंग कर सकते हैं? जजेस की हम सैलरी रिड्यूस कर रहे हैं ड्यूरिंग देयर ऑफिसेस. अगर आपको याद हो तो सेक्शन 356 टॉक्स अबाउट द स्टेट इमरजेंसी और द प्रेसिडेंट रूल. 352 talks about the national emergency, whereas section 360 talk about the financial emergency. That means option C will be the correct option. Financial emergency के दौरान हम judges की salary को reduce कर सकते हैं. The next question is, the unlawful detention of a person is questioned by the writ of. किसी person को हमने unlawfully detain कर लिया है, ठीक है, तो वो पर्सन कौन सी रिट लगा सकता है? ठीक है, रिट हमारे हमारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन में हम रिट पिटीशन डाल सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट और इन द हाई कोर्ट फ्रॉम आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226. तो अनलॉफुल डिटेंशन के दौरान भी हम एक रिट लगा सकते हैं. तो इनमें से कौन सी रिट लगा सकते हैं? इज इट ऑप्शन ए, दैट इज रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस? ऑप्शन बी, रिट ऑफ प्रोहिबिशन? Option C, writ of quo warranto, or is it option D, writ of certiorari? Okay. Question number 123.
कौन सी रिट हम लगा सकते हैं फॉर द अनलॉफुल डिटेंशन? And the correct answer to this question is option number A, that is the writ of habeas corpus. This is the most important writ. हालांकि पांचों रिट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में हेबियस कॉर्पस पूछा जाता है। तो हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। अगर कोई पर्सन अनलॉफुली डिटेन हो जाता है तो वो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अप्लाई करके अपनी बॉडी रिलीज करवा सकता है, या उसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, कोई भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस की पिटीशन डाल सकते हैं कोर्ट में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाई कोर्ट इन इंडिया डू नॉट पोजेस। हाई कोर्ट के पास इनमें से कौन सी जुरिस्डिक्शन नहीं रहती है? ऑप्शन ए अपीलिएट जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन बी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ऑप्शन सी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज रिवर्जनरी जुरिस्डिक्शन? बात हो रही है हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर 124। तो हाई कोर्ट के पास मैं बता दूं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, रिवर्जनरी जुरिस्डिक्शन तो है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है एंड अपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी है, लेकिन एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है सर। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोविजंस अंडर द 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल की यहाँ बात हो रही है। हमारे पास टोटल 12 शेड्यूल्स हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। अर्लियर वी हैड ओनली 8 शेड्यूल्स, लेकिन बाद में और 4 शेड्यूल्स ऐड कर दिए गए हैं। ठीक है, अब 9th शेड्यूल के बारे में बात हो रही है। तो कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्या ये कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज किया जा सकता है? इट कैन नॉट बी चैलेंज इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। कोर्ट में हम इसे चैलेंज नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन सी, कैन सीक ओपिनियन फ्रॉम द स्टेट लेजिस्लेचर। हम स्टेट लेजिस्लेचर से ओपिनियन ले सकते हैं विद रिगार्ड टू द 9th शेड्यूल, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज नन ऑफ द अबव? क्वेश्चन नंबर 125, provision under the 9th schedule, and the correct answer to this question will be option number B, that is it cannot be challenged in a court of law. 9th schedule को हम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। The next question is, under which article of the constitution the Supreme Court of India has been established? हमने कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश करा है? एंड वी हैव ऑप्शंस, आर्टिकल 224, आर्टिकल 124, आर्टिकल 24, और इज इट आर्टिकल 234? सुप्रीम कोर्ट के एस्टैब्लिशमेंट की बात हो रही है, राइट? सुप्रीम कोर्ट की एस्टैब्लिशमेंट इनमें से कौन से आर्टिकल के द्वारा करी गई है? एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 124. The next question is, the High Court has power to issue writ under which article? इसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले ही बात करा है। हाई कोर्ट के पास रिट इशू करने का पावर है जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स वायोलेट होते हैं, और हम एज पर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर इशूइंग अ रिट, फॉर अप्लाइंग अ रिट पिटीशन। ओके, एंड अगर हमें सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है तो हम आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करेंगे। आर्टिकल 32 इज ऑल्सो नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, these are the constitutional remedies. The next question is, power of the Supreme Court can be enlarged by? सुप्रीम कोर्ट के पावर को कैसे enlarge किया जा सकता है? Is it option A, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स enlarge कर सकते हैं? ऑप्शन बी पार्लियामेंट, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, और इज इट ऑप्शन डी दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी enlarged by, सुप्रीम कोर्ट के पावर को कैसे enlarge करा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 128, and the correct answer to this question will be option number B, that is by the parliament. पार्लियामेंट के पास ये पावर, सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी enlarged by the parliament. पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट के पावर को enlarge कर सकते हैं। The next question is, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिसेस बाय? अब हम सुप्रीम कोर्ट के जज को उनके ऑफिस से कैसे रिमूव कर सकते हैं? क्या हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा कर सकते हैं? क्या हम इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा कर सकते हैं? क्या हम जुडिशियल ऑर्डर के द्वारा कर सकते हैं? और क्या हम पार्लियामेंट्री ऑर्डर के द्वारा कर सकते हैं? बात करी जा रही है जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट के रिमूवल की। ओके,
क्वेश्चन नंबर 129, सुप्रीम कोर्ट के जज को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? And the correct answer to this question is option number B, that is through impeachment. Through impeachment we can remove the judge of a Supreme Court. Impeachment that means महाभियोग के द्वारा हम remove कर सकते हैं. अभी करेंटली हमारे नए चीफ जस्टिस बने हैं, आप उन चीफ जस्टिस का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे. जस्टिस DY चंद्रचूड़ अब रिटायर हो चुके हैं और उनका प्लेस लिया है एक नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने. आप उनका नाम बताइए हमें. The next question is, which article of the Constitution of India deals with the advisory jurisdiction of Supreme Court? किस आर्टिकल में एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की बात कही गई है? सी, सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी होता है, अपीलिएट जुरिस्डिक्शन भी होता है, रिवर्जनरी जुरिस्डिक्शन भी होता है एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी होता है. ठीक है, ये सारे जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास हैं. अब सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलता है? Is it Article 84, Article 141, Article 143, or is it Article 142 of the Indian Constitution? Advisory jurisdiction of the Supreme Court. And the correct answer to this question will be option number C, that is Article 143 talks about the advisory jurisdiction of the Supreme Court. The next question is, subjects in the dash schedule is beyond the scope of judicial review. अभी अभी हमने बात करी है, किस शेड्यूल में ऐसा है? is beyond the scope of judicial review. कौन से शेड्यूल की जुडिशियल रिव्यू हम नहीं कर सकते हैं? Is it option A, that is 5th schedule, option B 9th schedule, option C 8th schedule, or is it option D 12th schedule? स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू से बाहर है इनमें से कौन सा शेड्यूल? And the correct answer to this question is option number B, that is 9th schedule. The next question is, the union legislature in India is empowered. Union legislature of India के empowerment की हम बात कर रहे हैं. तो we have option A, that is not to amend the basic structure of the constitution. उनके पास ये पावर नहीं है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकें, ठीक है, या अमेंड कर सकें. या उनके पास पावर है टू अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इज इट ऑप्शन सी कि वो डिसॉल्व कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इज इट ऑप्शन डी टू एब्रोगेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? यूनियन लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया के पास कौन सी पावर है, इनमें से क्या कर सकते हैं वो? इसके लिए आपको एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आपके ध्यान में आ रहा होगा, दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इसमें ये बात कही गई थी कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं, उसमें कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने का पावर किसी के भी पास नहीं है. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, preventive detention is a reasonable restriction on. Preventive detention जो होता है, that is a reasonable restriction on which of the following article? Is it Article 19, Article 15, Article 21 और Article 32? अगर हम preventive detention की बात करें तो वो Article 22 में उसके बारे में बात करी गई है, लेकिन वो उसमें भी अगर हमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन चाहिए तो इनमें से कौन से आर्टिकल का हम इस्तेमाल करते हैं? तो वी विल बी यूजिंग आर्टिकल 21, दैट मींस राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ठीक है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को हम रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following is inevitable outcome of the liberalization? अगर आपने पॉलिटी थोड़ा पढ़ा होगा या इंडियन हिस्ट्री पढ़ा होगा, हिस्ट्री विद रिगार्ड टू दी पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, तो आपको समझ में आएगा इनएविटेबल आउटकम ऑफ लिबरलाइजेशन क्या था. इज इट ऑप्शन ए, दैट इज रिट्रेस ऑफ द स्टेट? इज इट ऑप्शन बी, री एंट्री ऑफ द स्टेट? इज इट ऑप्शन सी, न्यूट्रलिटी ऑफ द स्टेट? Or is it option D, none of the above? Inevitable outcome of liberalization.
अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं बने तो आप परेशान मत होइएगा, बिकॉज ये वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। बहुत लोगों से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। और इसका सही आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रीट्रेस ऑफ द स्टेट। मैं आपके लिए कुछ रेयर क्वेश्चंस भी लेकर आ रही हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको बैरेट में इजीली मिल जाने वाले हैं, लेकिन दो चार ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जिनका आंसर बैरेट में आपको नहीं मिलेगा, इसलिए आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते चलिए। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनहेरेंट इन कम्युनलिज्म। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो है। Inherent in communalism, is it option A, peace of all religious sect, option B, racial overtone, option C, ethnic discrepancy, or is it option D, antagonistic assertion in all spheres of the life? मैं आउट ऑफ द बॉक्स भी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस ला रही हूँ कि अगर एग्जाम में डायरेक्टली आप इस तरह के क्वेश्चंस देख के आप परेशान मत हो जाइएगा, आप पहले से प्रैक्टिस करते चलिए, आपको एक्सपीरियंस रहे कि हाँ कुछ आउट ऑफ द बॉक्स भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं बता दूं, करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एंटागोनिस्टिक असर्शन इन ऑल स्फेयर्स ऑफ द लाइफ। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर अपडेट्स। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले कि आपके लिए और अच्छी वीडियोस मैं ला सकूं। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।